बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ عادل اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجبوری میں عادل سے شادی تو کر لی تھی، پر وہ عادل کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کمرے میں رکھے صوفے پر سوتی تھی۔ یہ دیکھ کر عادل کو غصہ آنے لگتا۔ ایک دن عادل نے صوفہ کمرے سے نکال دیا۔ مناہل سونے آئی تو عادل سے صوفے کا پوچھا۔ عادل نے کہا، اگر تمہیں سونا ہے تو بیڈ پر سو جاؤ۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر تکیے کی دیوار بیڈ کے درمیان بنا کر ایک طرف لیٹ گئی۔ عادل غصہ پیتے رہ گیا، پر جب آتی رات مناہل گہری نیند میں گئی تو عادل نے درمیان سے تکیے ہٹا دیے اور نرمی اور محبت سے، مناہل چھت پر آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی موبائل اسکرین پر اسد کا نام جگمگایا تو اس نے فوراً موبائل اٹھا کر اس کا پیغام پڑھا کہ بھلا آدھی رات کو اسے کیا ضروری بات کرنی تھی۔ ویسے تو اس وقت گھر میں سب سو رہے تھے اور اس بات کا کم ہی امکان تھا کہ کوئی اٹھ جاتا اور اس کو اوپر جاتے یا نیچے اترتے دیکھ لیتا۔ پھر بھی اسے اسد سے یوں چھپ کر ملنا گوارا نہ تھا۔ بھلا وہ اس سے دن کی روشنی میں بات کیوں نہ کر سکتا تھا، یا موبائل پر کال ملا کر بات کر لیتا۔ اس کے اور اسد کے بیچ میں کون سا ایسا سلسلہ تھا کہ وہ آدھی رات کو اس کے ایک پیغام پر یوں بھاگی چلی جاتی۔ وہ کشمکش کا شکار تھی۔ ویسے بھی اسے ایسی چھچوری حرکتیں پسند نہ تھیں۔ اسد کا دوبارہ نام موبائل پر ابھرا تو اس نے چونک کر فون اٹھایا۔ یار جلدی کرو، ٹھنڈ سے میری کلفی جم رہی ہے۔ وہ چاروں ناچار اٹھی اور اپنے گرد چادر لپیٹتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ نہ جانے ایسی کون سی ضروری بات ہے جو اسے اتنی ٹھنڈ میں یوں آنا پڑا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اسد کو صاف صاف بتا دے گی کہ آئندہ کبھی ایسی ملاقات کی امید رکھے اور نہ فرمائش کرے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آئی تو سامنے کی دیوار پار اسد کو اپنا منتظر پایا۔ وہ اسے دیکھتے ہی دیوار کود کر اس کے جانب آ گیا۔ کیا بات ہے، ایسے یوں اتنی رات گئے تک ملنا قطعی مناسب نہیں۔ مناہل نے سب سے پہلی بات یہی کہی تھی۔ میں جانتا ہوں مناہل، مگر میں کیا کروں؟ کئی دنوں سے ہمت جمع کر رہا ہوں، مگر ہمت ہے کہ پڑتی ہی نہیں۔ عجیب کشمکش میں ہوں یار، پر آج میں نے فیصلہ لے لیا کہ میں یہ ہمت کر کے ہی رہوں گا۔ وہ بے چینی سے بولا تو مناہل کچھ حیران ہوئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مناہل کی سمجھ میں اس کی کوئی بات نہ آ رہی تھی۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا مناہل، وہ ہونٹ چباتا بولا۔ اماں ابا نے یہ رشتہ زبردستی طے کر دیا ہے۔ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ تمہیں دھوکہ دینے سے بہتر مجھے یہی لگا کہ میں تمہیں صاف صاف بتا دوں۔ وہ مناہل کے ساکت وجود سے نظریں چرا کر مسلسل بول رہا تھا تاکہ اپنی بات ختم کر کے دوڑ لگا دے۔ وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اسی لیے گھبرا رہا تھا، مگر دھوکہ دینے سے بہتر تو دل توڑنا ہی تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کل کو اس کی اپنی ہڈیاں ٹوٹنے والی تھی، مگر وہ تیار تھا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر وہ یوں مسلسل پریشانی میں نہ رہ سکتا تھا۔ مناہل ساکت آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکا تو مناہل نے غور سے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، مگر وہ پوری طرح سنجیدہ تھا۔ وہ مناہل کی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ دیکھو مناہل، میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا یا رسوا کرنا نہیں ہے، مگر میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں اماں ابا کے کہنے میں آ کر تم سے شادی کر بھی لوں تو تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گا یار، وہ بے چارگی سے بولا۔ مناہل ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ وہ بھلا ان سب باتوں کے جواب میں کیا کہتی؟ وہ ٹھکرا دی گئی تھی۔ ابھی تو اس کی منگنی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ابھی تو اس نے پوری طرح سے اسد کے ساتھ خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ ابھی تو ان کے رشتے کی شروعات تھی۔ ابھی اس کے ہاتھوں پر ہلکی سی مہندی کی جھلک تک باقی تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں کو اپنی منگنی کی تصویریں دکھانی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سے لگنے لگی تو وہ رخ پھیر گئی۔ ساتھ والی چھت پر کھڑے عادل کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ فون کان کو لگائے اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اسد کی تمام گفتگو سن چکا تھا۔ اپنی کم مائیگی پر مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ کی پوچھ سے رگڑ کر اپنے آنسو بے دردی سے پوچھ ڈالے اور سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ مناہل اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے ابا ریٹائرڈ کرنل تھے۔ وہ اصولوں کے بڑے ہی پکے تھے۔ انہوں نے مناہل کی تربیت سخت اصولوں پر کی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ مناہل اپنے خاندان کی باقی لڑکیوں سے بے حد مختلف تھی۔ وہ بے انتہا ذہین تھی۔ تعلیم کے میدان میں اس نے جھنڈے گاڑے تھے۔ اساتذہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ وہ سنجیدہ مزاج کی حامل، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، مگر حسن و خوبصورتی میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ دبلی پتلی سی مناہل اپنی عمر سے کافی کم دکھائی دیتی۔ اس کے تایا اس کے بالکل برابر والے، جبکہ چچا پیچھے والے گھر میں رہتے تھے۔ تمام گھروں کی نہ صرف چھتیں آپس میں ملتی، بلکہ ایک دوسرے کے گھر جانے کا راستہ بھی چھت سے رکھا گیا تھا۔ رشتہ داروں کی آپس میں نوک جھونک اور اونچ نیچ چلتی رہتی، مگر مناہل کے ابا اور اس کے چچا تایا تینوں نے مل کر طے کر رکھا تھا کہ وہ آپس میں اپنا رشتہ کبھی خراب نہ ہونے دیں گے، چاہے ان کی بیویاں جتنا مرضی زور لگائیں، بلکہ بچوں کی آپس میں شادیاں کر کے اس رشتے کو مزید مضبوط کریں گے۔ مناہل چونکہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی، لہٰذا اس کا زیادہ رشتہ داروں کی طرف آنا جانا نہ تھا۔ اس کی کزنز اس سے ملنے چلی آتی،
तो वो खूब हंसकर बातें कर लेती, मगर किसी से उसकी ज्यादा दोस्ती न थी। उसने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की तो उसके अम्मा अब्बा ने उसके लिए रिश्तों की तलाश जारी कर दी। उसके ताया के मंझले बेटे असद का रिश्ता उसके लिए आया था तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मा अब्बा दोनों को ही ये रिश्ता पसंद था। असद अच्छा और सुलझा हुआ नौजवान था। ये पहला रिश्ता था जो मनाहिल के लिए आया था, इसलिए उसका दिल अजीब से एहसासात लिए हुए था। उसके माँ बाप खुद से कोई फैसला न लेना चाहते थे, मनाहिल की राय जानना जरूरी था। तुम बताओ, तुम अपने सभी कजन्स को अच्छी तरह जानती हो, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो तुम बता सकती हो। नहीं अम्मा, मुझे क्या एतराज होना है भला, जो आपकी और अब्बा की मर्जी मेरी भी वही मर्जी है। मनाहिल ने सारे फैसले अम्मा अब्बा पर छोड़ दिए। उसके घर वालों ने उसके लिए असद का रिश्ता कबूल कर लिया तो वो भी खुश हो गई। आखिर अम्मा अब्बा ने सोच समझ कर ही फैसला लिया था। मनाहिल और असद की मंगनी धूमधाम से कर दी गई, मगर वो नहीं जानती थी कि उसका मंगेतर असद उसे यूं ठुकरा जाएगा। मनाहिल ने सुबह से खुद को कमरे में बंद कर रखा था। वो अपने माँ बाप को किस मुंह से बताती कि असद ने उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया है। वैसे उसूलन तो ये रिश्ता उसके माँ बाप ने तय किया था, तो उसके माँ बाप को ही मनाहिल के माँ बाप को बताना चाहिए था, मगर शायद असद की इतनी हिम्मत न थी कि वो अपने माँ बाप के सामने इनकार कर सकता। अगर इतनी हिम्मत होती तो वो इतना सब कुछ होने से पहले ही इनकार कर देता, लेकिन उसने मनाहिल के सामने इनकार करने की जुर्रत कर ली थी। मनाहिल को अपनी कम मायगी का एहसास मजीद जाग रहा था। असद को खुद ही सबके सामने इनकार करना चाहिए था। अब अगर वो अपने मुंह से इनकार करेगी तो घर वाले यही समझेंगे कि शायद मनाहिल को इस रिश्ते पर एतराज है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर वो चौंक गई। अम्मा कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से तुम उठी नहीं। अम्मा उसके करीब चली आई और उसके माथे पर हाथ रखकर देखने लगी। उसका माथा ठंडा था, यानी उसे बुखार ना था, मगर उसकी आंखों की सुर्खी कुछ और ही कहानी सुना रही थी। क्या बात है बेटा, सब खैर तो है? जी बस वो सर में कुछ दर्द है, वो टालने से अंदाज में बोली। उसकी रोई हुई आवाज कुछ भारी मालूम हो रही थी। शायद तुम्हारा गला खराब है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता कमरे में ही भिजवा देती हूँ। उसकी अम्मा उसकी फिक्र करती नाश्ता बनाने चलती। उसकी आंखों में आंसू दोबारा से चमकने लगे। प्लीज मनाहिल, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। उसके मोबाइल पर एक बार फिर से असद का पैगाम आया। अब उसे क्या मदद चाहिए थी? वो मनाहिल के साथ जो कुछ कर चुका था वो कम था क्या? वो हैरान थी। उसने असद के किसी पैगाम का कोई जवाब न दिया और उसके अगले पैगाम का इंतजार करने लगी। क्या तुम सबके सामने ये कह सकती हो कि तुम इस मंगनी के लिए तैयार नहीं हो? मनाहिल हैरान थी। असद इस कदर बेहिस था। एक तो उसने मनाहिल के साथ रिश्ता यूं खत्म कर दिया और किसी और के साथ शादी करना चाहता था, जबकि वो चाहता था कि मनाहिल सारा इल्जाम अपने सर ले ले। देखो मनाहिल, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर इतना आसान होता तो मैं सब कुछ पहले ही कर लेता, मगर मैं पूरी तरह से फंसा हुआ हूँ। प्लीज तुम मेरे ऊपर मेहरबानी करो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और वादा करता हूँ कि जब भी जरूरत पड़ी तुम्हारे काम जरूर आऊंगा। मेरी ये मुश्किल आसान कर दो प्लीज मनाहिल। तुम्हारे सिवा मुझे कोई भी इस मुश्किल से नहीं बचा सकता। उसने मनाहिल की मिन्नतें तरले करने शुरू कर दिए थे। उसका वॉइस मैसेज सुनकर वो मजीद परेशान हो गई थी। वो ये सब भला कैसे कर सकती थी? अपने माँ बाप की नजरों में खुद ही कैसे गिर सकती थी? वो जानती थी कि उसके अम्मा अब्बा अपने खानदान में उसका रिश्ता होने पर किस कदर खुश थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अपने खानदान से बाहर जाए। वो अपने सगे ताया के घर जाती तो उसके माँ बाप को सुकून रहता और उन्होंने अपनी खुशी और मर्जी से रिश्ता तय किया था, जबकि मनाहिल की रजामंदी भी जानी थी और उसने भी अपने माँ बाप को मंजूरी दे दी थी। अब वो चाहता था कि वो इल्जाम अपने सर ले ले और असद को बरी जिम्मा कर दे। ऐसा कैसे मुमकिन था? मनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मनाहिल के शबो रोज परेशानी में गुजर रहे थे। उसके माँ बाप शादी की तैयारियों में मगन थे, जबकि असद अभी तक अपने माँ बाप को इनकार करने की हिम्मत न कर सका था। वो मनाहिल के इंतजार में था कि किसी तरह मनाहिल सूरत हाल को संभाल ले। उसने अभी तक असद की किसी बात का कोई जवाब न दिया था। वो ये सब न करना चाहती थी। उसके माँ बाप रोज बरोज शादी की तैयारियों के मुतालिक बात करते। उनका इरादा था कि वो मनाहिल को जल्द अज जल्द रुखसत करके उसके घर का करें और खुद पुरसुकून होकर उम्र की सादत को जाएं। मगर मनाहिल अजीब उलझन का शिकार थी कि शादी होती उसे दिखाई न दे रही थी, और वैसे भी जब असद किसी और लड़की में दिलचस्पी रखता था तो ऐसे में अगर मनाहिल जबरदस्ती उसके सर पर मुसल्लत कर भी दी जाती तो मनाहिल की जिंदगी कैसी गुजरती? वो मनाहिल को कभी भी कबूल न करता, बल्कि उसके पास तो ये बहाना भी होता कि वो शादी से पहले ही मनाहिल को सब कुछ साफ साफ बता चुका था। लेकिन अगर असद ने अपने माँ बाप के सामने इनकार न किया तो फिर ये शादी जबरदस्ती का सौदा ही होती। मनाहिल दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला फटक था, जबकि परेशानी उसके चेहरे से चिपक चुकी थी।
अम्मा अब्बा को यही लगता कि वो घर से रुखसत होने की टेंशन ले रही है। उन्हें उसकी परेशानी की असल वजह मालूम न थी। उसकी मंगनी के 1 हफ्ते बाद ही उससे रिश्ता खत्म कर दिया गया था, मगर इस बात को भी 1 महीना होने को आया था और असद की तरफ से अभी तक बिल्कुल खामोशी थी। उसने उस दिन के बाद से मनाहिल को मजीद कोई पैगाम न भेजा था। उसे एक बार तो असद से दोबारा बात करनी चाहिए ताकि वो जान सके कि वो क्या करने का इरादा रखता है। वो असद को साफ साफ बताना चाहती थी कि वो खुद ही इस शादी से इनकार करे। उसने बहुत सोच समझकर फैसला किया और असद को पैगाम भेजा कि उससे छत पर मिलना चाहती है। मैं ये इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं ले सकती। मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। बराए मेहरबानी आप अपने माँ बाप को कहें कि आप ये शादी नहीं करना चाहते ताकि मैं इस मुश्किल से निकलूं जिसमें मैं फंस चुकी हूँ। उसने असद को वाज़ेह पैगाम दिया तो वो चौंक गया। ये क्या कह रही हो मनाहिल, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वो हैरानी से पूछ रहा था, जबकि मनाहिल की आंखें हैरत से फटी थी। वो गौर से असद का चेहरा देख रही थी। असद उसके साथ क्या गेम खेल रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब वो अपने मुंह से क्या कहती कि वो उसके साथ शादी रचाना चाहती है? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती और आप मुझे इस मुसीबत से निकालें जिसमें आपने मुझे डाल दिया है। ये रिश्ता ख़त्म करें और अपने माँ बाप को वाज़ेह तौर पर बताएं कि आप ये शादी नहीं करना चाहते। उसने असद को अपना पैगाम पहुंचाया और पलटकर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। वो कदरे मुतमईन थी कि अब उसने अपना वाज़ेह पैगाम असद को पहुंचा दिया था कि वो खुद ही अपने माँ बाप को इनकार करे। लिहाजा उसे उम्मीद थी कि असद जल्द ही कोई कदम उठाएगा और इस बात का फैसला हो जाएगा। मनाहिल, तुमने अगर इस रिश्ते से इनकार करना था तो तभी कर देती जब हमने तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहिए थी, मगर तब तो तुमने इकरार कर लिया और अब असद को मुंह उठाकर कह दिया कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर असद को कहना था तो तुम मुझे ही कह देती। क्या तुम अपनी माँ से ज्यादा उस लड़के के करीब थी जिससे तुम्हारी मंगनी को 1 डेढ़ माह ही हुआ है? अम्मा ने आकर मनाहिल को गुस्से में कहा तो वो चौंक गई और माँ की शक्ल देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? मैं असद को शादी से इनकार क्यों करूंगी? क्या तुमने कल उससे छत पर मुलाकात नहीं की और उससे अपना पैगाम नहीं पहुंचाया? और ये आवाज़ सुनो, क्या ये तुम्हारी आवाज़ नहीं है? उसकी माँ ने उसकी रिकॉर्डिंग उसके सामने चलाई तो वो चौंक गई। मैं ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं ले सकती। मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। बराए मेहरबानी आप अपने माँ बाप को कहें कि आप ये शादी नहीं करना चाहते ताकि मैं इस मुश्किल से निकलूं जिसमें मैं फंस चुकी हूँ। क्या कह रही हो मनाहिल, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती और आप मुझे इस मुसीबत से निकालें जिसमें आपने मुझे डाल दिया है। रिश्ता ख़त्म करें और अपने माँ बाप को वाज़ेह तौर पर बताएं कि आप ये शादी नहीं करना चाहते। ये तो मनाहिल की आवाज़ थी जो कल रात उसने असद को कहा था, मगर उसके माँ बाप इस बात का पस मंज़र ना जानते थे। उसने खुद से शादी से इनकार न किया था, मगर उसने तो असद की बात का हवाला दिया था। पहले तो वो इनकार कर चुका था। सूरत हाल किस कदर अजीब हो गई थी। यानी असद ने एक नई चाल चली थी। उसे यकीन न आ रहा था कि असद इस कदर घटिया निकलेगा। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर जाएगा। अम्मा, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। वो जल्दी से बोली। असद ने अपने माँ बाप को यही कहा है कि तुमने शादी से इनकार किया है। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। उसने अपनी अम्मा को यकीन दिलाने की कोशिश की जो शक भरी नज़रों से उसे देख रही थी। मैं आपको सारी बात बताती हूँ अम्मा, मैंने असद को शादी से इनकार नहीं किया। उसने मुझसे शादी से इनकार किया था। मंगनी के 1 हफ्ते बाद ही उसने मुझे छत पर बुलाया था और साफ साफ बताया कि वो ये शादी नहीं कर सकता। और फिर उसने कुछ अरसे बाद मुझे कहा कि मैं अपने सर शादी ना करने का इल्ज़ाम लेकर ये रिश्ता ख़त्म करवा दूँ। मगर जब मैंने उसे कोई जवाब ना दिया और ना आप लोगों को कुछ बताया तो उसने ये नई चाल चली। ज़ाहिर सी बात है वो समझ गया था कि मैं अपने सर इल्ज़ाम ना लूँगी। मैं उसे सिर्फ ये कहना चाहती थी कि वो खुद ही करे जो करना है। मैं आप लोगों को बताने की हिम्मत न कर पाई। अगर उसको इनकार करना था तो इल्ज़ाम भी अपने सर ही लेना था। मनाहिल ने सारी बात वाज़ेह की, मगर उसकी माँ को यकीन न आया। ये क्या कह रही हो मनाहिल? अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे उसी वक्त बता देती। अब अगर हम उनको ये बात बताएंगे तो वो हम पर ही शक करेंगे। असद ने सारी बात तुम पर डाल दी है। हो सकता है कि तुम सच ही बोल रही हो और असद झूठ बोल रहा हो, लेकिन हम अब उसके माँ बाप को कैसे यकीन दिलाएंगे? असद के पास सबूत है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मनाहिल ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर असद के पैगाम ढूंढने चाहे जो असद ने पहले भेजे थे, मगर वो पैगाम कहीं न थे। शायद मनाहिल वो पैगाम गुस्से में डिलीट कर चुकी थी। नहीं अम्मा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वो मायूसी से बोली थी। मनाहिल ने ताया ताई के सामने भी वही बात बताई जो सच था। उन्होंने असद को भी सामने बिठा रखा था। दोनों में से एक तो सच बोल रहा है। इनमें से कोई तो है जो ये शादी नहीं करना चाहता। मनाहिल को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हो सकता है असद झूठ बोल रहा हो। ताया ने गुस्से से अपने बेटे को घूरा तो वो सर झुका गया।
वो वैसे भी मनाहिल के सामने शर्मिंदा बैठा था। मनाहिल उसकी हालत देखकर साफ अंदाजा लगा सकती थी कि वो शर्म से पानी पानी है, मगर न जाने क्यों उसके माँ बाप ये न समझ रहे थे। वो अपने बेटे पर कैसे शक कर सकते थे? यकीनन उनके दिल में मनाहिल पर शक होगा, मगर फिर भी उन्होंने मनाहिल को कुछ न कहा था। बहरहाल जो भी है भाई साहब, बच्चे एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। ये बात तो वाज़ेह है। क्या आपने असद से मंगनी से पहले उसकी मर्जी जानना चाहिए थी? मनाहिल के अब्बा ने अपने बड़े भाई से पूछा तो वो चौंक गए। हाँ, पूछा था इससे। सारी बात इसके सामने ही हुई थी। अगर इसको इनकार करना था तो ये तभी कर देता। हमने मनाहिल से भी पूछा था, इसने भी इकरार किया था। न जाने इन बच्चों के बीच क्या चल रहा है। शायद हमसे अभी भी कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दें। बच्चों की इस नादानी बेवकूफ़ी को आपस में इख्तलाफात की वजह न बनने दें। मनाहिल के अब्बा ने काफ़ी समझदारी का मुजाहरा किया तो उसके बड़े भाई भी इस बात पर मुत्तफिक हो गए। हाँ, हम तो इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए रिश्ता जोड़ना चाहते थे, लेकिन अगर बच्चे रिश्ता नहीं करना चाहते और हमें इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ रहा है, मगर हम इस रिश्ते की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात को ख़राब न करें। बच्चों की खुशी हमारी खुशी है। ठीक है, हम इस रिश्ते को बाहमी रजामंदी से ख़त्म करते हैं। मनाहिल के अब्बा और ताया दोनों ने रजामंदी से इस रिश्ते को ख़त्म किया तो मनाहिल ने सुख का सांस लिया। बीच में वो भी फंसी थी। उसको पहले ही ये बात अपने माँ बाप को बता देनी चाहिए थी, मगर वो इतनी बड़ी बात अपने माँ बाप से छुपा गई, सिर्फ इसलिए कि वो अपने माँ बाप के चेहरे पर अपनी वजह से परेशानी न देखना चाहती थी। मनाहिल इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि रिश्ता ख़त्म होने का इल्ज़ाम उसके सर भी आया था। वो अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं देखना चाहती थी और जानती थी कि वो बेकसूर है। उसने अपने माँ बाप को यकीन भी दिलाया था। उसके माँ बाप को शायद उस पर यकीन आ भी गया था, मगर ताया ताई को न जाने अपने बेटे पर शक था कि मनाहिल पर उन्होंने कोई बात वाज़ेह न की थी। वो चुप चुप रहने लगी। वो पहले ही अपने कजन्स के साथ ज़्यादा फ्री न थी, अब तो बिल्कुल ही गुमसुम हो गई। उसके अब्बा ने उसके लिए कहीं और रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। चूंकि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लिहाजा वो चाहते थे कि मनाहिल के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले तो उसको उस वक्त में ही रुखसत करे जब का वो इरादा पहले कर रहे थे। भाई आदिल, हमारी मनाहिल से शादी का ख्वाहिशमंद है। अगर आपको मुनासिब लगे तो। मनाहिल के चचा और चची मिठाई के टोकरे समेत उसके अम्मा अब्बा से उसका हाथ मांगने चले आए थे, मगर मनाहिल तो आदिल से बड़ी है। मनाहिल की अम्मा ने एतराज़ उठाया था। 2 साल का ही तो फ़र्क है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है जब लड़के की अपनी मर्जी शामिल है। आदिल आपका देखा भाला है, आपके सामने पलकर जवान हुआ है। वो मनाहिल को बहुत खुश रखेगा। आप प्लीज़ गौर कर लें, इनकार मत करिएगा। हम बड़े अरमानों से मनाहिल का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। चची ने एक लंबी तकरीर झाड़ी थी। अच्छा, मनाहिल के माँ बाप सोच में पड़ गए। कहीं यही तो चक्कर नहीं हो सकता है कि मनाहिल और आदिल दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हों। हम सोच कर जवाब देंगे। मनाहिल के बाप ने पुरसोच लहजे में भाई भावज को जवाब दिया तो वो खुशी खुशी लौट गए। तुम्हारे लिए आदिल का रिश्ता आया है, तुम्हारी राय के बगैर कुछ ना होगा, मगर इस बार अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना। इनकार की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। मनाहिल की माँ ने मनाहिल को फैसले का इख्तियार दिया तो वो चौंक गई। आदिल? उसे अचानक याद आया कि पहली बार जब उसने छत पर असद से मुलाकात की थी तब आदिल ने उसे वहां देखा था और उनकी बातें भी सुनी थी। आदिल उसका गवाह बन सकता था, मगर मनाहिल के जहन से ये बात बिल्कुल निकल गई और ना ही आदिल ने किसी के सामने ये तस्करा किया था। उसने इस बार भी ये फैसला अम्मा अब्बा के सर पर छोड़ दिया था। अम्मा, मैं किसी को पसंद नहीं करती। ये गिरा असद की वजह से आपके दिल में पड़ी है। हाँ, बेशक आदिल को इनकार कर दें या इकरार कर लें, मैं आपके फैसले और मर्जी पर खुश हूँ। उसने इस बार अपना वाज़ेह पैगाम अम्मा तक पहुँचाया तो वो खुश हो गई। हमें अपनी बच्ची पर पूरा एतमाद है, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी आदिल आज ही वापस आया है। वो आया था हमसे मिलने। उसने बताया है कि असद खुशरुआ है, वो अपनी किसी कुलीग से मोहब्बत करता है। मैंने आदिल को भेजा है तुम्हारे ताया की तरफ, ताकि उधर ये बात वाज़ेह कर दे कि इस सारे मामले में कसूरवार कौन था। अम्मा ने खुशी से उससे पूरी बात बताई तो उसके दिलो दिमाग में इत्मीनान भर गया। वो इतने अरसे से इस बात पर परेशान थी कि बिला वजह ही बदनाम हो गई थी। तुम्हारे अब्बा आदिल को इसलिए पसंद करते हैं कि वो तुम्हारे अब्बा की तरह फौज में है। तुम्हें तो पता है इन फौजियों को अपनी फौज की जिंदगी कितनी पसंद होती है। अम्मा ने इस बार शरारत से कहा तो मनाहिल भी हंस दी। तो तुम्हें वाकई कोई एतराज़ नहीं है ना आदिल से शादी पर? अम्मा ने एक बार फिर पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। वो बड़े दिनों के बाद घर से निकली थी, अपनी सहेली से मिलने गई थी। वो जो ही घर आई ताया ताई को बैठे देखकर चौंक गई। उसने उन्हें सलाम किया और अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो ताया ने आवाज़ देकर उसे रोक लिया।
मैं आज खास तौर पर अपनी बेटी से माफ़ी मांगने आया हूँ। वो ताया की बात सुनकर हैरान थी। किस बात की माफ़ी? वो सोच कर रह गई। उसूलन तो असद को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस नालायक की वजह से हमने तुम पर शक किया। मुझे माफ़ कर देना बेटा। ताया ने उससे माफ़ी मांगी तो वो तड़प गई। नहीं ताया जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका क्या कसूर था भला? जिसका कसूर था वो भी माफ़ी मांगेगा। वो बहुत शर्मिंदा है, शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपा रहा है। मैंने अच्छी क्लास ली है उसकी। आइंदा कभी इस तरह का धोखा करने की कोशिश भी ना करेगा। लतीफ़ और सुंबुल, तुम दोनों भी मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मनाहिल के अम्मा अब्बा के सामने हाथ जोड़ दिए। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब? आप बड़े हैं, हमें गुनहगार मत कीजिए। मनाहिल के बाप ने उन्हें फौरन माफ़ कर दिया। मुझे मनाहिल को ही अपनी बहू बनाना है। मैं किसी और को कभी अपनी बहू के तौर पर कबूल ना करूंगा। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो ये रिश्ता दोबारा जोड़ दो। मनाहिल और उसके माँ बाप उनकी बात सुनकर सख्त हैरत का शिकार थे। ये कैसे मुमकिन है भाई साहब? क्यों मुमकिन नहीं? बात हम भाइयों के बीच की ही थी। अगर तुम लोग ये रिश्ता न करोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुमने मुझे माफ़ न किया। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। असद किसी और को पसंद करता है। वो मनाहिल को कैसे खुश रखेगा? अब असद उस लड़की से शादी नहीं करेगा। वो निकाल चुका है उसे अपनी जिंदगी से। वो बस उसकी एक नादानी समझकर भूल जाओ। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो किसी और खानदान की लड़की मेरे घर में ले आए। उसमें इतनी जुर्रत नहीं। और मनाहिल की गारंटी मैं देता हूँ, वो खुश रखेगा मनाहिल को। तुम्हें मालूम तो है, जवानी में अक्सर लड़के यूं ही बहक जाते हैं। वक्ती पसंद को न जाने क्या समझने लगते हैं। शादी के बाद सब संवर जाते हैं। तुम अपनी मिसाल ही ले लो। फौज में जाने से पहले तुम कैसे उस चमारन के लिए अपनी नस काटने लगे थे, और अब देखो कैसी शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। भाई साहब को न जाने कब की बात याद थी जो उसकी बीवी और बेटी के सामने निकाल बैठे थे। वो दोनों माँ बेटी चौंक कर लतीफ़ पर नजर जमाए बैठी थी, जबकि लतीफ़ पर घड़ों पानी पड़ गया था। ये सब क्या हो रहा था? मनाहिल की समझ से बाहर था। उसके माँ बाप अलग सर पकड़ कर बैठे थे। भाई साहब अपनी जिद पर अड़े थे कि उनकी बहू बनेगी तो सिर्फ मनाहिल। एक आदिल था जो मनाहिल को पसंद करता था, जो किसी और को पसंद करता था। मेरा तो यही ख्याल है कि मनाहिल की शादी आदिल से की जाए। असद का कोई भरोसा नहीं है। वो पहले भी धोखा कर चुका है, दोबारा भी कर सकता है। जवान औलाद पर पहरे नहीं बिठाए जा सकते। वो मनाहिल की जिंदगी तबाह कर सकता है। मनाहिल का बाप अपनी बीवी की बात से मुत्तफिक था, मगर भाई साहब वो नाराज हो जाएंगे। वो फिक्रमंदी से बोला, अब उनकी नाराजगी के खातिर बच्ची की जिंदगी तो तबाह नहीं की जा सकती। सोचो विचार के बाद भी फैसला आदिल के हक में ही हुआ था। घर में एक बार फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अम्मा अब्बा दोनों खुश थे। उनकी खुशी देखकर मनाहिल भी खुश हो जाती, मगर उसको एक बात का अफसोस था कि आदिल उससे उम्र में छोटा था। वो उसे उस तरीके से कबूल न कर पा रही थी जैसे उसने असद को कर लिया था। शायद उसके दिल में भी कहीं असद मौजूद था। उसे अपने जज्बात खुद ही समझ न आते, मगर इस सब में आदिल का कोई कसूर न था। वो ये भी जानती थी कि कसूर तो उसका अपना भी न था। शायद आदिल उससे हमदर्दी की बिना पर तो शादी करने न चला था कि असद ने उसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया था। उसके दिल में मुख्तलिफ वहम सताते रहते। वो सोचों को अपनी ज़हन से झटक देती। उसने इस रिश्ते के लिए इकरार किया था, अपनी मर्जी और खुशी से किया था। वो अपने माँ बाप को रंजीदा नहीं देखना चाहती थी। वो पहले ही उसकी वजह से परेशान थे, अब उन्हें मजीद क्या परेशान करती। इसीलिए उनकी खुशी में राजी हो गई। वो जानती थी कि अब्बा के सारे वोट आदिल की तरफ ही थे। कहीं आदिल हमदर्दी में आकर ये सब कर रहा हो और बाद में उसे इस बात का पछतावा हो कि मनाहिल उससे उम्र में बड़ी थी। उसने आदिल के बारे में कभी इस हवाले से सोचा ही न था, क्योंकि उसने उसे हमेशा अपने छोटे भाई का दर्जा दिया था। मगर एहसासात तब्दील करने में देर कितनी लगती है। वो भी निकाह के बाद बदल जाएगी, वो यही सोचकर खुद को मुतमईन कर लेती। उसकी रुखसती में कुछ दिन ही बाकी थे। अम्मा ने उसे बाकायदा मायूं बिठा दिया था। आदिल की छोटी बहन सुरैया को उसके पास घर में छोड़कर अम्मा अब्बा किसी काम से निकले थे। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे तक चली आई। सुरैया छत पर कपड़ों को धूप लगवाने के लिए फैलाने गई थी। असद को दरवाजे पर खड़े देखकर वो चौंक गई और एक जाने फट गई। मनाहिल, मैं तुमसे सॉरी करने आया हूँ। मुझे मालूम था कि मैं गलत कर रहा था, मगर अब्बा ने मेरे पास कोई और रास्ता ही न छोड़ा था। मैं क्या करता? मैं बस चाहता था कि किसी तरह ये रिश्ता खत्म हो जाए और अब्बा को सच न पता चले, क्योंकि फिर वो वही करते जो अब कर रहे हैं। मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उस लड़की से राब्ता खत्म करके उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं। अब भला तुम खुद ही बताओ, जिंदगी मैंने गुजारनी है कि अब्बा ने? वो लम्हे को चुप हुआ। तो आपको उन्हें मनाना चाहिए था, ना कि दूसरों को मुश्किल में फंसा दे। वो फौरन बोली तो वो शर्मिंदा हो गया। मनाहिल, मैं पहले ही शर्मिंदा हूं।
मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ तो मेरा मुजरिम आदिल है। उसने अम्मा अब्बा को मेरे खिलाफ भड़काया है। वो उस लड़की को भी जानता है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और उसने अम्मा अब्बा को उस लड़की के बारे में भी बता दिया, वरना शायद मैं अपनी जबान से कभी उस लड़की का नाम ना आने देता। मेरा राज खोलते हुए ये भूल गया कि उसका अपना राज भी मेरे पास है। ये लो उसकी डायरी जो मुझे उसके घर से ही मिली थी, इसको पढ़ लेना। वो खुद भी उतना मासूम नहीं है जितना पूरे खानदान के सामने बना हुआ है। मैं चाहता तो उसको तुम्हारे अम्मा अब्बा और उसके अम्मा अब्बा के सामने जलील करवा सकता था, पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ। वो उसे डायरी थमा कर चलता बना, जबकि मनाहिल का दिल दरस कर रह गया। उसने डायरी मजबूती से थाम कर अपने दुपट्टे के पल्लू तले छुपा दी। न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। दिल में कुछ खदशात लिए वो रुखसत होकर आदिल की जिंदगी में चली आई थी। वो चूंकि फौज में था, लिहाजा आए दिन उसकी ट्रांसफर होती रहती। आजकल उसकी पोस्टिंग शुमारी इलाका जात में थी। वो आदिल से झिझक का शिकार थी, क्योंकि वो जानता था कि असद ने किस तरह उसका दिल तोड़ा था। वो चाहता तो अपने जाने से पहले भी उसके माँ बाप को बता सकता था कि असल कसूरवार कौन था, मगर उसने सच बताने में बहुत देर की थी। वो आदिल के साथ कोई ताल्लुक न बना पाई थी। आदिल ने भी कुछ खास कोशिश न की। शायद वो उसे वक्त दे रहा था, या शायद उसने तरस खाकर मनाहिल से शादी की थी। उससे बमुश्किल 1 हफ्ते की छुट्टियां मिली थी। मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा, वो जाते हुए बोला, तो मनाहिल नजरें चुरा गई। वो शादी के बाद से अपनी नौकरी के सिलसिले में इस कदर मसरूफ हो गया कि वो 1 या 2 दिन से ज्यादा ना आ पाता। मनाहिल उससे कुछ खिंची खिंची रहती। उसका इरादा था कि जैसे ही उसे फरागत नसीब होगी वो मनाहिल को सैर के लिए लेकर जाएगा, मगर अभी तक उसे ऐसा कोई मौका न मिला था। इस बार वो जरा लंबी छुट्टियों के लिए आया था। उसका ट्रांसफर किसी और इलाके में हो गया था, लिहाजा उससे पहले उसे कुछ छुट्टियां दी थी। उसके पास पूरे 2 हफ्ते थे। उसका इरादा था कि वो इस बार मनाहिल को जरूर कहीं घुमाने के लिए ले जाएगा। वो दिन भर घर के कामों में खुद को मसरूफ रखती। वो जब भी उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करता वो उसे नजरअंदाज कर देती। मनाहिल, 1 कप चाय तो मेरे कमरे में ले आओ। उसे और कोई तरीका न सूझा तो उसे चाय के बहाने कमरे में बुलाया और खुद कमरे में बैठकर मनाहिल का इंतजार करने लगा। दरवाजे पर आहट सुनकर वो सीधा हो बैठा। मनाहिल के बजाय अपनी छोटी बहन को चाय की ट्रे उठाए देखकर वो कुछ हैरान था। इसका मतलब साफ था कि मनाहिल उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। भला उसका कसूर क्या था? उसने चाय पीना गवारा न किया और ट्रे ऐसे ही मेज पर छोड़कर घर से बाहर निकल गया। आदिल बिस्तर पर लेटे करवट पर करवट बदल रहा था। मनाहिल न जाने कहाँ रह गई थी। वो उससे बात करना चाहता था। वो रात गए कमरे में घुसी और कमरे में रखे सोफे पर जाकर लेट गई। आदिल फौरन ही उठ बैठा। इससे पहले कि वो उससे मुखातिब होता उसने फौरन करवट बदली और चादर ऊपर तक ओढ़कर चेहरा भी ढांप लिया। आदिल को काफी सुबकी महसूस हुई। ये भला क्या बात हुई? वो इतने अरसे बाद आया था और एक उसकी बेगम साहिबा थी जिनके मिजाज ही न मिल रहे थे। देखता हूँ ये कब तक सोफे पर सोती है। वो गुस्से में भरा था। उसके लिए ये बहुत कीमती वक्त था, जबकि वो इस वक्त को यूं ही जाया कर रही थी। उसने गुस्से में सोफा ही कमरे से निकाल दिया। दिन भर तो वो किसी को एहसास ना होने देती कि वो आदिल से खुश न थी, जबकि रात को वो अजनबी बन जाती। रात गए वो कमरे में आई तो आदिल सोता बन गया। वो कमरे के बीचों बीच कुछ देर खड़ी रही और फिर बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। आदिल ने जरा सी आंख खोलकर देखा तो मनाहिल की नजर उसी पर थी। सोफा कहाँ है? मनाहिल ने फौरन उससे पूछा। अगर तुम्हें सोना है तो बेड पर सो जाओ। वो कुछ देर सोचती रही, फिर तकिए की दीवार बेड के दरमियान बनाकर एक तरफ लेट गई। आदिल गुस्सा पीते रह गया। पर जब आधी रात मनाहिल गहरी नींद में गई तो आदिल ने दरमियान से तकिए हटाए और नरमी और मोहब्बत से उसे अपनी बाहों में भरकर अपने करीब कर लिया। मनाहिल ने कोई मुजाहिमत न की। उसने मजीद पेशकदमी की तो मनाहिल ने एक झटके से खुद को अलग किया। जिससे मोहब्बत के इकरार किए थे, प्यार का अमली मुजाहरा भी उसी के साथ करो। वो नफरत से फुनकार कर बोली तो आदिल हैरान रह गया। ये क्या कह रही हो? मैंने किससे मोहब्बत के इजहार किए हैं? वही जिसे तुम खुतूत लिखा करते थे और उसके लिए अपनी डायरी में मोहब्बतनामे लिख रखे हैं। मनाहिल ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो वो चौंक गया और नजरें चुरा गया। तुम्हें ये सब मुझे जिसने भी बताया हो, मगर मेरे पास सबूत है। वो बिस्तर से उछलकर उठी और अलमारी में जा घुसी। कपड़ों के नीचे से उसने वही पुरानी ब्राउन जल्द वाली डायरी निकाली जो आदिल कब से ढूंढ रहा था। इसमें इश्क व मुआशकी के जो इकरार हैं वो तुम्हारी ही लिखाई में है ना? वो दांत चबाते हुए बोली तो वो चुप का चुप रह गया। मनाहिल की नाराजगी की वजह उसे अब समझ आई थी। वो उससे इस कदर बदगुमान थी कि उसे सफाई का एक भी मौका फराहम न किया था। उसने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। न जाने मनाहिल को उसके माजी के बारे में कैसे अंदाजा हुआ था। ये सच था कि उसने ये इकरारनामे खुद ही लिखे थे। ये भी सच था कि वो किसी को टूट कर चाहता था
اس کو پانے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش بھی کی تھی، مگر مناہل کو کم از کم اسے ایک موقع تو دینا ہی چاہیے تھا۔ شاید مناہل کے ہاتھ میں اس کی کھوئی ہوئی ڈائری لگ گئی تھی۔ تو مناہل کو سیر پر کیوں نہیں لے کر جاتے؟ عادل کے بابا نے بھی شاید ان دونوں کی دوری کو محسوس کر لیا تھا، تبھی عادل کو مشورہ دیا۔ بابا میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، مگر مناہل جانے سے منع کر رہی ہے، اس نے صاف جھوٹ بولا۔ مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں بیٹا مناہل، کیا بات ہے؟ چچا نے اسے پکارا تو وہ شرما گئی۔ نہیں چچا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں کل کی ہی سیٹیں کروا لیتا ہوں۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا۔ پیکنگ کر لو، کل شام کو ہمیں نکلنا ہے۔ وہ اسے ٹکٹ دکھاتے بولا تو وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، وہ تیکھے انداز میں بولی تو عادل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دیکھو مناہل، گھر میں تم میرے قریب آتی ہو، نہ میری کوئی بات سنتی ہو۔ سیر پر جانے کے لیے تم تیار نہیں ہو، بھلا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، اپنی محبت تم تک کیسے پہنچاؤں؟ وہ سنجیدگی چھوڑ شرارت پر اتر آیا تو مناہل کا دل جل کر رہ گیا۔ تم کیا وضاحت پیش کرو گے کہ تم کسی لڑکی کو چاہتے تھے مگر اب نہیں چاہتے، اور یہ کہ تم نے مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کی ہے کیونکہ اسد نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، یا شاید تمہیں اس لڑکی نے ٹھکرا دیا تھا تبھی تمہیں میرا درد پوری طرح سے محسوس ہوا؟ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی گئی۔ میری بات سنو مناہل، تم نے ڈائری تو پڑھ لی اور یہ بھی سوچ لیا کہ میں کسی لڑکی کو چاہتا تھا، یہاں تک تمہاری ساری باتیں درست ہیں، مگر اب میں اس لڑکی کو نہیں چاہتا۔ تمہاری یہ بات درست نہیں ہے، میں اب بھی اسے ہی چاہتا ہوں اور ساری زندگی چاہتا رہوں گا۔ وہ مناہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ عادل اس طرح سے صاف لفظوں میں اس سے اپنے پرانے عشق کا اقرار کرے گا۔ اگر وہ ابھی تک اس لڑکی کو چاہتا تھا تو مناہل یہاں کیا کر رہی تھی؟ نہ وہ اسد کی چاہت تھی اور نہ عادل کی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تو عادل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹھ جاؤ، میری بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی، اتنا کافی ہے، مزید سننے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، وہ ضدی لہجے میں بولی تو عادل نے ایک جھٹکا دے کر اسے بٹھا دیا۔ مناہل، وہ لڑکی جس کا اس ڈائری میں ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں، تم ہو۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی اور تمہیں چاہا، مگر میں کبھی کہہ نہ پایا۔ اپنی محبت کے تمام اقرار میں نے اپنی ڈائری میں لکھ رکھے ہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مناہل نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس ڈائری میں کہیں بھی میرا نام نہیں لکھا، تمہارا نام صرف بدنامی کے ڈر کی وجہ سے نہیں لکھا تھا۔ گھر میں اور لوگ بھی موجود تھے، اگر ڈائری کسی کے ہاتھ لگ جاتی جیسے اب تمہارے ہاتھ لگ گئی تو تم بدنام ہو جاتی، اسی لیے میں نے نام نہ لکھا۔ وہ ہمیشہ سے تم تھی اور ہمیشہ تم رہو گی مناہل۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو مناہل کو اس کی آنکھوں میں سچائی ہی سچائی دکھائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارا رشتہ بھیجتا، اسد کا رشتہ تمہارے لیے قبول کر لیا گیا۔ میں تمہیں بھولنے کی کوشش کر سکتا تھا اگر تم اس رشتے پر خوش ہوتی، مگر قدرت نے مجھے ایک اور موقع دیا۔ میں نے اسد کی باتیں سن لی جو اس نے تم سے کی تھی۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے کئی بار کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ چکا تھا، پر مجھے لگا کہ وہ پہلے کی باتیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے، مگر اس نے تم سے شادی سے صاف انکار کیا تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میں جانتا تھا وہ جلد یہ رشتہ توڑ دے گا، مگر وہ اتنا بزدل نکلے گا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ہاں، تھوڑی سی خود غرضی سے میں نے کام لیا اور معاملے کو مزید بگڑنے دیا تاکہ صلح صفائی کی ذرا سی بھی گنجائش باقی نہ رہے۔ وہ بات مکمل کر چکا تو امید بھری نظروں سے مناہل کی جانب دیکھنے لگا۔ اب تمہیں یقین آیا مجھ پر کہ نہیں؟ مناہل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم بہت تیز ہو، گیم کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ ابھی تک شک میں مبتلا تھی۔ توبہ ہے مناہل، تم بہت ہی شکی ہو۔ اچھا یہ دیکھو، وہ ڈائری تو تمہارے ہاتھ لگ گئی مگر یہ تصویریں نہ لگی۔ اس نے بیٹھ کے میٹرس کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک البم برآمد کی تو مناہل چونک گئی۔ اس میں ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری سب کے سب مناہل کی تصویریں تھیں جو مختلف مواقع کی تھیں، ان میں سے کچھ عادل کے ساتھ بھی تھیں۔ یہ کب بنائی تم نے؟ مناہل حیران تھی، اسے ان تصویروں کے بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا۔ تم تو اس قدر تھرڈ کلاس عاشقی کرتے رہے ہو جیسے فلمی ہیرو کیا کرتے تھے، وہ بھویں چڑھا کر بولی تو عادل ہنس دیا۔ ہاں بھائی، کچی عمر کی محبت انسان کو ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ مطمئن تھا کہ اب تو مناہل کو اس کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ تو پھر چلیں کل سیر پر؟ وہ اس کے کان میں گھس کر بولا تو وہ شرما گئی۔ میں باورچی خانہ دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تو عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب فرار ہونے کا کوئی موقع نہ ملے گا۔ اس نے اپنی باہیں پھیلا کر اس کے بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ مناہل کے سارے خدشات دور ہو گئے تھے۔ عادل نے اسے اپنی محبت کا یقین دلا دیا۔ وہ ایک ہفتہ اس کے ساتھ شمالی علاقہ جات گزار کر آئی تو اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ وہ تو اسد کی شکر گزار تھی کہ جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا،
اور उसे आदिल जैसे अजीम शख्स की जिंदगी में दाखिल होने का मौका दिया था। उस वक्त तो उसको असद का खुद को ठुकराया जाना बहुत बुरा लगा था, मगर असद की उस हरकत का नतीजा बहुत ही शानदार रहा था। वो आदिल का साथ पाकर बेहद खुश थी, जबकि ज्यादा खुशी की बात तो ये थी कि वो आदिल की मोहब्बत भी थी। आदिल उससे अपनी बेताबियों का जिक्र करता तो अब उसे उसकी एक एक बात पर यकीन होता। असद ने ताया ताई की मर्जी के खिलाफ उस लड़की से शादी तो कर ली थी, मगर ना तो ताया ताई उसे कबूल कर पाए और ना वो असद के घर के माहौल में एडजस्ट हो पाई और असद को अपने साथ अपने घर ले गई। वो अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके लिए असद को पालना इतना मुश्किल न था। मनाइल को असद की पसंद की वजह पूरी तरह समझ आ गई थी। वो उसकी दौलत तो जायदाद थी जिसको असद ने ज्यादा मुतासर किया था। भले जो भी था, मनाइल की जिंदगी असद ने काफी आसान बना दी थी। वो आदिल का हाथ पकड़कर साहिल समंदर पर चलती तो उसका हाथ मजबूती से थाम लेती। वो दुआ करती कि यह हाथ उसके हाथ से कभी न छूटे। आदिल फौजी वर्दी में उसे घुमाने ले जाता तो इर्द गिर्द मौजूद लड़कियां रश्क भरी नजरों से उनकी जोड़ी को देखती और जी भर कर सराहती। वो आदिल के साथ किसी सूरत कम न लगती। दोनों एक से बढ़कर एक थे और फिर जो उनके दरमियान केमिस्ट्री और मोहब्बत थी वो दूर से भी समझने को काफी थी। आदिल के साथ खुशी उसके अंग अंग से आया होती। उसके चेहरे की सुर्खी लौट आई थी। वो बात बात पर कह कह लगाती तो उसकी खनखनाती हंसी पूरे घर में गूंजती। वो कितनी खुशकिस्मत थी कि उसको इस कदर अच्छा शरीके हयात मिला था। वो अपने रब का शुक्र अदा करते न थकती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।